चलें जी. So we started mathematics from the numbers. We discussed the paper patterns. There are two choices: 4024 for GC students and IGCSE 0580 students. So now we had a number family. We started number family that originally there are 10 numbers. Then we discussed about the whole numbers, natural numbers, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, irrational numbers, rational numbers, square numbers, cube numbers, integers, and then we discussed few examples. We discussed that what are multiples and what are factors. अगर आप में से किसी ने फर्स्ट लेसन नहीं लिया तो फर्स्ट लेसन की रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने ग्रुप में भिजवाई है. अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको भेज दूंगा. So today we'll be starting the topic which is in the numbers, which is prime factorization. Prime factorization. Okay, so prime factorization बेटा, since beginning we know that कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग उसके वी स्प्लिट में इंग्लिश में लिखूंगा सिंपल में, एंड वी स्प्लिट द नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स. अच्छा, कैम्ब्रिज में 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द prime factorization. Is my font clear? सर Of 64 कि 64 की बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है. यहाँ पे स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर याद रखें एज अ नेम इंडिकेट्स, आपने ये स्टेयर मेथड यूज करना है, ठीक है. कैमरेज में एप्लीकेबल है यही मेथड, ठीक है. 64. अब आपने ये जो लेफ्ट साइड पर ये जितने भी ये जो यहाँ पे जितने नंबर्स आपने लिख रहे हैं ये तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स होने चाहिए. अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा. तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2 बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वी हैव. So 2 हमने लिख दिया. So we'll go that 32. All right. फिर हमें 2 लेना है क्योंकि अभी तक ये 2 की गेम खत्म नहीं हुई. So now it's 16. Now 2, that is 8. Now 2, that is 4. Now 2, that is 2. And 2 ones are 2. Is this clear, everybody? So it means that I can write 64 as 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So 64 is equals to 2 power 6. So 2 power 6 is the prime factorization of 64. For example, if the number is a bit different. For example, if the number is, for example, 168. So how can we do it? We do this technique that we'll write here. As the number is even number because the last digit is even, 8 is an even number, so हमें 2 लेना है. So that would be 84. half हो गया. Okay, again we have to take 2, that would be 42. Okay, then again 2, that would be 21. Okay, Abdullah Javed, 21 is not an even number. Okay, it's an odd number now. Yes or no? Yes or no? So now we have this technique that 21 is my odd number. So what I can do here, I can see that this number is 1 and 2 plus 1 is 3. So I have to use 3 instead of using 7. बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 7 3s are 21 ले देते हैं. तो छोटे से बड़े की तरफ जाएं. असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना बहुत जरूरी है बच्चा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3. 3 7s are 21. नाउ 7 1s are 7. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में नीचे 1 तक आना जरूरी है. तो अगर 168 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो ये ऐसे होगा 2 times 2 times 2 times 3 times 7. अब देखें जी, प्राइम फैक्टराइजेशन का वी डिड द पोस्टमार्टम, हमने पोस्टमार्टम किया और तमाम के तमाम नंबर हम लोगों ने प्राइम नंबर्स बना दिए हैं इसके. वी कैन राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन. इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं 2 times 2 times 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब. ये हो जाएगा बेटा 3 और ये हो जाएगा बेटा 7. इज दिस क्लियर हमजा? Haika, is this clear to you? Please turn on your mic and you have to discuss each and everything with me. yes, sir. Okay, that's very good. For example, if the question is that write the prime factorization of 56. अगर आपके पास आ जाता है कि 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मैं इसके बाद एक वर्कशीट आज भिजवाऊंगा, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है. तो 2 से स्टार्ट लें. सो बिकॉज 56 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इवन नंबर है. सो 2 2s are 4.
So 1 will go there, it becomes 16. So 2 8s are 16. Okay, then we have to go 2 again. So it becomes 14. So now 2, that is 7, and 7 ones are 7. So it means that I can write 56 as 2 cube times 7. Okay, अब्दुल्ला जावेद बेटा एक चीज याद रखिएगा, आपको मेरी आवाज क्लियर है? राबिया, अब्दुल्ला जावेद, खतीजा, Yes, sir. देखें Yes, ये sir. थैंक्स, देखें 56 को मैंने लिखा है 2 क्यूब इंटू 7, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। देखें जब मैं 168 पे आया तो मैंने 2 3 7, दीज आर द प्राइम नंबर्स। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर आपने ऐसा लिख दिया है जो कि प्राइम नंबर नहीं है तो फिर यू विल स्ट्रगल। और प्रीवियस लेसन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, ये दिखा देता हूँ दोबारा। दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ। एक तो वो खुद ही होगा और दूसरा होगा 1। ठीक है जी, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द प्राइम फैक्टराइजेशन जी, एलसीएम भी हो गया हमारे। अच्छा, अब आता है हमारे पास एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब याद रखें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ उसी को करें, ठीक है। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 64 और 168, हमने ऊपर किया हुआ है, ठीक है जी। सो अगर ये दोनों आ जाते हैं, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, ओके। This is the question, find the LCM and HCF of 68 and 168. तो अब आपने करना क्या है, you have to write the same stair method, same stair method लिखना है, लेकिन दोनों नंबर्स के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया 64, 168. Okay, Rabia, are these two number even or odd? Even. So can I use table 2? Yes. ओके, सो यूजिंग टेबल 2। अच्छा बेटा, आप में से जितने लोगों के पास भी आईफोन है, काइंडली जरा आपको मेरी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन बार नजर आ रहा है? नजर आ रहा है बेटा सबको? ऊपर देखें टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है माइक मोड, ऊपर टॉप कॉर्नर में लिखा हुआ है माइक मोड। आप माइक मोड पे क्लिक करके इसको वॉइस आइसोलेशन पे ले जाएं, ठीक है। ऑलराइट, आई कैन यूज टेबल 2, मैं टेबल 2 को इस्तेमाल कर सकता हूं। सो इट वुड बी 32, ओके, एंड इट वुड बी 84, ओके। So SN, can I use table 2 again? SN, can I use table 2 again? Yes, sir. Yes, I can. So it will be 16, comma 42. Okay. Can I use table 2 again? Yes, sir. All right. So table 2, and that is 8, and that is 21. Okay. Now the tables are changed. Yes or no? Now No, sir. you can see. Now you can see that. You can see that 8 and 21, they don't come in a single table. Yes or no? In Yes. single table. Abdullah Javed, beta samajh aa rahi hai? Turn on the mic and tell me. Sir, are you referring to me? Okay, so now you can see that 8 and 21, they don't come in a single table if the table changes. If the table changes, ये टेक्निक याद रखें, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। If the table changes, so you have to stop, आप stop कर जाओ, ठीक है जी। Okay, so now I got HCF and I got LCM. Okay, where they are, let me just show you. Wait a minute. Okay, LCM is the blue arrow, please check. These 3 is the HCF. Okay, is this clear everybody? Yes or no? Yes, sir. So it would be HCF is 2 times 2 times 2. Okay, so that is 8. So highest common factor is 8. Okay, now the LCM is the green color. Check, you have to start from this point, you have to go there, you have to go there. Is this clear everybody? So that's the green arrow. So you have to multiply all of them. So it's 2 times 2 times 2 times 8 times 21. Get it? So it's 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 8s are 64, and 64 times
21. So 64 times 21 is what? क्लास के दौरान कैलकुलेटर लेके बैठा करें. That is 1344. Right, Rabia? Yes. So this is the least common multiple. Okay. For example, so what this is, so we have to be very much sure about this. Okay. So please pay attention. So highest common factor means if the numbers have factors, so the common factor is, but highest. What does it mean? How it saved our time? Like for example, 64 and for example 168. If I want to get the factors which we started in the previous lesson, that factor means that a number comes in how many tables or which tables. So it simplified our time that the highest common factor of these two numbers is 8 only. Is this clear? They don't come in any other table other than 8. That is the highest common factor. Okay. Is this clear? Is this clear, everybody? Yes, sir. Okay. So what LCM means? LCM means highest common factor, sorry, least common multiple. LCM is least common multiple. What does it mean, least common multiple? If we write the tables, अगर हम इनके tables लिखना शुरू कर दें, if we write the tables of 64 and 168, we have to continue the table. हम continue करना पड़ेगा table को till we see 1344. Is this clear, everybody? Yes or no? बेटे ये नोट्स इसलिए बना रहा हूं ताकि कल को आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. Is this clear? Is this clear? Rabia, can you hear me? Yes, sir. Better say yes or no whenever I ask, is it clear or not? Okay. Okay. For example, Okay. let's practice another question. For example, the question is find the LCM and HCF of, for example, let me take two numbers randomly. So it's, for example, let's take 27 and 130. So 27 and 130. Okay. So 27 and 130, these are the two numbers. So separately करने से बेहतर है, let's go in a one go. So one go पे हम लोग इसको करते हैं. This is 27 and 130. So SN or Haika, which table I should use? Sir, 3. Okay, so do we have 130 in table 3? No, sir. No, we don't have. Okay, then देखो 2 is out, 3 is also out. I can take 5. No, I cannot take because 27 is not the member of table 5. Yes or no? Then we have a prime number 7. I cannot take it. Then what is the prime number after 7? 11. Okay, so can we take 11? There is no. Okay, what about 13? We can take 13 for 130, but not for 27, right? Yes, sir. Okay, now proceeding. Okay, after 13, the prime number is 13. The prime number is 17. We cannot take it. What about 19? We cannot take it. Agree? Okay.
Any other number, prime number after this? I have to go till 27 only. Please, please, please. After 19, the prime number is 23. 20. Okay, I cannot take it. What about 29? I cannot take it because 29 in 29 table 27 is not there. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So Yes, we sir. don't have any highest common factors because they don't come in any table except for table 1. Okay, Yes, sir. they don't come in a single table except for table 1. ठीक है? So in this case, the highest common factor is only one. ठीक है? Highest common factor जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, because 1 के अलावा किसी टेबल में इकट्ठे आते नहीं है. ठीक है? ऐसे ही है ना? And the LCM is straight away 27 times 130. Is this clear? Yes or no, Rabia? Haika, can you get Yes, this? sir. Haika, can you get this? 27 times 30, so it's negative 27 times 30, so it's 810. So 810 is the least common multiple they have. So I hope this is clear. Is this clear, everybody? ये तेरा दोबारा एक्सप्लेन कर दे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके ओके बेटा, यहाँ पे हमने 2 नंबर लिखे हैं 27 और 130. ठीक है, हम लोगों ने इनको चेकिंग की, ये किसी भी टेबल में नहीं आते थे इकट्ठे. इज दिस क्लियर? और हमने ये चेकिंग किया है हाइका टेबल नंबर 29 तक चेकिंग किया है, क्योंकि 29 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, 27 से बड़ा हो गया है. ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो वी गॉट दिस आइडिया कि यार ये किसी भी प्राइम नंबर्स के अंदर इकट्ठे नहीं आते हैं, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. गेट इट? सो हमें ये पता चल गया कि एचसीएफ इज ओनली 1, कि एचसीएफ इसका सिर्फ 1 है, कि ये दोनों नंबर जो हैं 27 और 130 ये सिर्फ टेबल 1 में इकट्ठे आते हैं, इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं आते इकट्ठे. फिर दूसरी बात ये कि एलसीएम हमने जब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखा कि 27 और 130 का टेबल आप कंटिन्यू कर लो तो आपको 810 तक जाओगी, तब जाके देखोगी दोनों के टेबल में 810 आ रहा होगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो Sir, जी. यस बच्चा. sir, the answer is 3,510. अच्छा, ये 810 नहीं आता? No, अच्छा, क्या आता है आंसर? दोबारा बोलें. 3,510. Okay, that is the answer. Thank you so much. Thanks for the correction. Okay, now proceeding with the next topic. After we are done with this, so we have to proceed the indices. All right. So beta indices means, indices का मतलब है, it means dealing with powers. Dealing with powers. मेरे ये नोट्स आपको क्लास के बाद फौरन मिल जाते होते हैं, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी. रिकॉर्डिंग आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास डाउनलोड करके पूरा एक फोल्डर बनाते रहें अपने पास. सारे लेक्चर्स आपके पास होंगे, कल को रिवीजन के टाइम काम आते हैं. मींस डीलिंग विद द पावर्स. चलें जी, 1 by 1 रूल नंबर 1. सो रूल नंबर 1. चलें रूल नंबर 1 डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जरा आपका मैं कॉन्सेप्ट भी चेक कर लूंगा कि आपके स्कूल्स में ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को कैसे बनाए गए हैं. सो ये थोड़ा सा जरा मुझे भी हेल्प हो जाएगी. Okay, for example, let me just write here a, x and y. Okay, the mathematical name for a is, a का mathematical name क्या होता है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? What is this? इसको मैथ्स में बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा कांस्टेंट. ठीक है, आपने जो वेरिएबल बोला है बेटा, वेरिएबल इसको बोलते हैं. ठीक है, और इसको बेस भी बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, y को बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंट. ठीक है, और एक्सपोनेंट के साथ इसको पावर भी बोला जाता है, और कांस्टेंट को हम लोग साथ में बोल सकते हैं कोएफिशिएंट. ठीक है जी, कोएफिशिएंट. ठीक है जी. ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इससे स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये जरा याद रखें, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी यही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो वहां पे मैथ्स में जो है इसको वेरिएबल बोला जाता है, y को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और पावर जो है सिंप्लीफाई के लिए होता है, और मतलब आसानी से समझने के लिए, और कोएफिशिएंट मैथ्स में.
और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर आप लोग कांस्टेंट्स, पावर और बेसिस का नाम यूज कर रहे होते हैं किसी भी इंडेक्स के साथ, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें जी। रूल नंबर 1, ठीक है जी। रूल नंबर 1 मैं सिंपल सिंपल इंग्लिश में लिखूंगा, नोट्स बना रहा हूँ तो आप लोगों के लिए बेटर होंगे। ओके, रूल नंबर 1 इज मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो व्हेन बेसिस आर सेम, व्हेन bases are same, bases are same and there is product, and there is product, there is product, so we add the powers, so we add the powers, हम powers को add करते हैं, ठीक है बेटा। सो ये देख लें बेटा, फॉर एग्जांपल a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n। अब देखें जी, बेसिस सेम हो गई हैं, तो हमें इनकी पावर्स को करना है ऐड, ठीक है जी। इसके लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, सिंपल सिंपल सी एग्जांपल लिखते हैं जरा। लाइक फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 पावर 5, ठीक है जी। ये एग्जांपल के तौर पे समझा दिया जी। रूल नंबर 1 सबको क्लियर है बेटा, यस और नो? Yes, sir. वेल डन। ओके जी, प्रोसीडिंग टू रूल 2। जहाँ पे जिसको समझ ना आए माइक ऑन कर लिया करें, ठीक है। रूल नंबर 2, okay जी। rule number 2 is when is the division rule, is the division rule, ठीक है जी। रूल नंबर 2 जो है ये आपका डिवीजन रूल है, ठीक है। अच्छा जी, डिवीजन रूल में क्या होता है कि when bases are same, जब बेसिस सेम है and there is a division, so we subtracted, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। राइट द बेस वंस एंड सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल x पावर 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर। सो आप लिखोगे x, क्योंकि बेस सेम है, पावर में आ जाएगा 5 माइनस 2 व्हिच इज x क्यूब। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes. All Yes, sir. right. All right, so that is what the division rule is, कि when bases are same and there is a division, so we just subtract the power, upper power from the lower one, upper minus lower कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आज बेटा रूल 3 के ऊपर, रूल 3, ठीक है, रूल नंबर 3। ओके, रूल नंबर 3 इज डबल पावर रूल, डबल पावर रूल। ये बुक्स में ऐसे नहीं लिखे होते, तो काइंडली जब मैं क्लास के नोट शेयर करा करूँ अपनी कॉपी में लिख लिया करें, आसानी हो जाएगी। सो डबल पावर रूल बेटा इसको इस तरह कहते हैं कि एक m पावर और उसके ऊपर n आ जाए, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा कि अगर x पावर 5 होल स्क्वायर लिखा है तो ये x पावर 7 नहीं होगा, ये होगा x पावर 10। आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है जी। क्लियर है बेटा सबको? ये बेसिक्स बेटा बहुत जरूरी है। अच्छा, क्लियर है बेटा सबको? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ऑल राइट, फिर मैं प्रोसीड कर रहा हूँ बेटा रूल नंबर 4 की तरफ। जितने रूल हैं सारे मैं जरा डिटेल में लिख दूंगा, अपने पास प्यारे प्यारे से नोट्स बनाइएगा, मुझे पिक्चर्स भेजा करेंगे सर हमने ये बनाया है। रूल नंबर ये 5 क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ए अंदर है, बी बाहर है, और डिवीजन है, और ऊपर पावर में एक पावर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए पावर एम डिवाइड बाय बी पावर एम। इज दिस क्लियर? और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे है कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स डिवाइड बाय वाई होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. वी हैव टू स्प्लिट द पावर्स, हमें पावर्स को स्प्लिट करना पड़ता है ताकि हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास, ओके, रूल नंबर 6 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके जी, anything with power 0, it is equals to what? 1, it is equals to what? 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 आ जाए
तो वो 1 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10,000 और ऊपर लिख दूं पावर 0, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर थोड़ा सा फन पार्ट क्रिएट करूं, अगर आपके पेपर में टोटल मार्क्स 100 हैं और आपके टीचर ने ऐसे लिखा हुआ है कि टोटल 100 हैं और उसने आपको लिख दिया कि जी 100, लेकिन 100 के ऊपर पावर 0 है, सो इट मीन्स दैट you scored only 1 out of 100. Is this clear, everybody? Yes or no? That is the fun part. Easy? जी बेटा समझ आ गई Yes, sir. सबको? Yes, sir. जी हाय का बेटा समझ आई आपको? Okay. ओके दैट्स वेरी गुड। ओके जी, फिर इसमें चलते हैं जरा। मैं ये रूल्स को मैं नाम क्यों दे रहा हूँ, ये हमें देखने पड़ते हैं मैथ्स में। तो रूल नंबर 7 में नाम लेता हूँ इसको। ओके, for example Haika, we know this already that the value of the square root is, for example अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरह का लिख दूं a पावर, यहाँ पे लिख दूं x, तो आपको पता है कि इसका मतलब है कि you have to write, बेटा टर्न ऑफ योर माइक, किसका माइक ऑन है? 1/x, आप इसको 1/x लिख सकते हो। yes or no? Yes, sir. because we know that, for example अगर देखें आपके सामने मैं लिख दूं 2 पावर square root 2, तो इसका मतलब है we know that 2 पावर 1/2। yes or no? yes or no? Yes. अगर मैं लिख दूं बेटा के स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हमें पता है कि 4 होल पावर 1/2 की बात हो रही है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझाऊं ना, आपकी किताबों में कुछ ऐसा लिखा होता है, ये बेटा रेडिकल फॉर्म होती है जिसमें स्क्वायर रूट होता है, रेडिकल फॉर्म, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ राइट साइड पे लिख रहा हूँ, ये आपकी है इंडेक्स फॉर्म, जिसमें आप पावर में बना देते हो क्वेश्चन को। ओके राबिया, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अच्छा राबिया एक बात बताओ मुझे, अगर ये स्क्वायर रूट है और बाहर लिखा हुआ है 2 और अंदर m के ऊपर क्यूब है, तो इसको तुम कैसे लिखोगी? बेटा ये आएगा m पावर 3/2। क्लियर है राबिया? Yes. ओके, अगर अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ग्राफ दे देता हूँ कि ये कैसे होता है। आपको पता है कि आपने m क्यूब अपनी जगह पे लिख दिया, होल m क्यूब आपने अपनी जगह पे लिख दिया, m पावर m लिख दिया गलती से मैंने, m क्यूब आपने अपनी जगह पे लिख दिया और आपने स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिखा, तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपको दे देगा m पावर 3/2। एहसन जावेद बेटा समझ आई आपको? Yes, sir. ओके, सो बेटा इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देम, सो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंडिसेस। तो जी एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे जी। एनी क्वेश्चन? Okay. Okay, that's very great. Okay, let's proceed towards the questions now. पहले थोड़ा सा आप लोग मैथ्स की ग्रिप अपनी अच्छी करें, फिर मैं आपको पास पेपर पे ले जाऊंगा। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, indices is both important from exam point of view. Like for example, if the question is x power 5 whole square, so beta what is the answer? Double power, so we have to multiply it, so it would be x power 10, right Maro? जी सर। Okay, for example, if this is x square multiplied by x cube, so the Maro answer is x raised to the power 5। yes, 2 plus 3 bases are same, power add हो जाएंगी क्योंकि multiply हो रहा है यहाँ पे। Okay, question number 3, for example, x power 5 divided by x square, Maro what should I do now? सर पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x raised to the power 3 हो जाएगा। तो आप ये बोलें 5 minus 2 upper minus lower, agree? जी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अच्छा एक एक रूल मैंने ऊपर मिस कर दिया, नेगेटिव वाला, तो वो मैं ऐसा करता हूँ, जरा मैं क्वेश्चंस को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ क्योंकि नोट्स में ये इकट्ठे ही रहें तो बेहतर है। मैं इधर इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं नीचे ले जाऊंगा इधर, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ओके जी, ये रूल नंबर 7 हो चुका, रूल 8 भी है हमारे पास।
Rule number 8. If any power is in negative, so we can make it positive by taking it to the denominator, right, everybody? For example, Sn, if this is a power minus 6, so we can write this way 1 by a power 6, okay? Yes, sir. Okay, so, okay, let's proceed with the questions now. Question number 4. Okay, x square minus divided by x power minus 6. Ji, Rabia, what should be the answer? Rabia, what should be the answer? X minus 6 minus 2. No, 2 minus into minus 6, अपर माइनस लोअर, ठीक है? -6 पहले नहीं बोलना, ठीक है? Okay. So it would be x into 2 minus minus plus 6. So that is equals to x power 8. ठीक है जी? क्लियर है बेटा सबको? Is this clear everybody? क्योंकि आगे जाके मैं क्वेश्चन थोड़े से मिक्सअप कर दूंगा. ओके जी. So 710. Haika, Yes, sir. better, what is the answer? 1. Yes, anything with power 0 it is equals to 1. ये पेपर में क्वेश्चन आया था, पिछले साल आया था, इस तरह आया था, लिखा हुआ था 2022 पावर 0, so the answer is 1. कि किसी भी नंबर के ऊपर आप पावर 0 लगाएं तो 1 लगा दें. अगर फॉर एग्जांपल देखें, बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको ट्रिक करता है, वो आपको लिखा होता है उसने 2x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय 16 x क्यूब y पावर 5 होल पावर, और इधर लिखा होता है 0. तो आंसर क्या होगा बेटा? 1. यस, तो आंसर होगा बेटा आपका 1, स्ट्रेट अवे 1, क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं. एग्जामिनर आपको ये इसमें ट्रिक जरूर करेगा, ठीक है? कीप दिस इन माइंड, ठीक है? मैं जो चीजें बता रहा हूँ इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाएं. कोशिश करें मैथ से मोहब्बत करें. मोहब्बत कैसे होती है बेटा? 20 मिनट्स 30 मिनट्स अ डे प्रैक्टिस से होती है, बस, इससे ज्यादा नहीं. मैथ से आप लोग भाग नहीं सकते, ये याद रखें. मैथ्स आपका पीछा करेगी और हर जगह तक करेगी. तो प्लीज कोशिश करें कि इसको समझें, इसको सीखें, तभी जाकर आगे जाके होगा. थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं जरा. यहाँ पे क्वेश्चन 6, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय 16 x पावर 5 y पावर 3 होल पावर, फॉर एग्जांपल 1/2. ठीक है जी. अब ऐसा है कि इसमें सबसे पहले 1 बाय 1 काम करें. पहले कॉन्स्टेंट्स को हम काट सकते हैं. 2 1s are 2, 2 8s are 16. तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय 8x5 y क्यूब होल पावर 1/2. इसको बाहर ही छोड़ें, अभी 1/2 को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है. ओके जी. नेक्स्ट स्टेप देखें, मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि जरा समझ आसानी हो जाए. ओके, अब देखें ये आपके पास x स्क्वायर ऊपर भी है, x पावर 5 नीचे भी है, तो आपने यहाँ पे डिवीजन का रूल इस्तेमाल कर देना है, ठीक है? वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 y पावर 2 माइनस 3. अब देखें नीचे से जो x थे वो खत्म हो गए, राइट एवरीबॉडी? यस और नो? Yes, sir. ओके. एसन, Yes, sir. वेरी कैन यू हियर मी? Yes, sir. सॉरी यार, ये पता नहीं मैंने क्या किया कि ये बंद हो गया. स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. ऑल राइट. सो क्वेश्चन कहाँ गया जो हमने स्टार्ट लिया था? Think I have to design again now. What happened? चलें, खैर कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं. 2x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय 16x क्यूब y पावर 5 होल पावर 1/2. ठीक है जी. सो इसके अंदर अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था? ऐसा रिमेंबर दैट 2 1s are 2, 2 8s are 16 हमने कटिंग की थी, राइट? Yes, sir. सो ये आ गया था x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय 8x क्यूब y5 होल पावर 1/2. ओके जी. फिर हमने कहा क्या? हमने कहा कि जी हम लोग स्टैंड यहाँ पे डिवीजन रूल लगा देंगे. x स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर माइनस 5
तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 8 रह गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज की 1/2 लगा दिया। ओके जी, हमारे पास ऐसा आ जाएगा x पावर -1 राबिया -3 मारो डिनोमिनेटर में 8 हाई का होल पावर में 1/2, राइट एवरीबॉडी। Yes, sir. ओके जी, नाउ राबिया वी हैव टू द नेगेटिव पावर्स को नीचे लेके जाते हैं ताकि पावर जरा पॉजिटिव में हो जाए, यस और नो। Yes. तो ये ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, ऊपर हम सिर्फ 1 छोड़ देंगे अपने आप से, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो नीचे लिख देंगे 8 x नीचे आएगा तो पावर 1 होगी, 1 की पावर लिखते नहीं है, और y की पावर हो जाएगी +3 होल पावर 1/2। अच्छा जी, अब 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी है, तो 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 के ऊपर 1/2 लिखें या लिखे कोई एक ही बात है, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग इज 1 एक्सेप्ट फॉर 0 एंड 1 पावर 0 इज आल्सो इक्वल्स टू 1। सो हम लोग लिख देंगे जी 8 पावर 1/2 x पावर 1/2 एंड y पावर 3, और 3 के ऊपर हमें लगाना पड़ेगा 1/2। अच्छा एसन, ये 3 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा, राइट, बाकी और कुछ भी नहीं हो Yes, sir. सकता। 8 पावर 1/2 x पावर 1/2 एंड y पावर 3/2, ऐसा ही है ना बेटा, यस और नो। Yes, sir. राबिया इन सबको मैं रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइड बाय, मैं स्क्वायर रूट बाहर ले जाता हूँ, ठीक है बेटा, 1/2 बाहर ले गया हूँ, ठीक है राबिया, अंदर 8 रह जाएगा, x रह जाएगा और y के ऊपर पावर 3 रह जाएगी, यस और नो। सो दैट इज व्हाट योर आंसर इज। अगर एग्जामिनर आपसे इंडेक्स नोटेशन में आंसर मांगे तो ये इंडेक्स नोटेशन का आंसर है, अच्छा इंडेक्स, और रेडिकल में मांगे तो ये रेडिकल ये होती है जिसमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होता है, ठीक है, क्लियर है बेटा सबको, यस और नो। Yes, sir. बेटा इस चीज को बहुत ज्यादा आप लोग सीरियस तरीके से लें, तभी जाके आप लोगों को मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर पाओगे, ठीक है बेटा। ये जूम यूजर फिर किसकी आईडी है, जरा ये मुझे बता दें जरा प्लीज।